Hello, my dear students. Welcome back to the another virtual class of civics as well as political science. So today I'm going to teach you fundamental rights. As I've already taught you this chapter in the initial phases of the lockdown when the classes started. So again I'm going to start this video based on fundamental rights. So this video is going to be much more simpler as compared to the earlier videos. Okay, so I hope you'll watch this video till the end. So let's start our today's class. So I have already written over here. Okay, so the fundamental rights, the topic which we are going to discuss is this one, fundamental rights, which is enshrined in part 3 of our constitution. Okay, so altogether 22 parts are there in our constitution. So in part 3 fundamental rights are mentioned down. Okay, so as a citizen of this country we must know about the fundamental rights, what it is and how these rights are to be utilized and what restrictions are imposed during emergencies and all these things we'll discuss today. So though this video will become little bit lengthier because the entire part 3 we are going to discuss in one video, so please stay till the end. Okay, so you can see over here I have mentioned it over here, right to equality. Altogether 7 fundamental rights are there. Okay, 7 fundamental rights are there. I'll explain you one by one all the fundamental rights along with the articles. Okay, the first one is a right to equality, which is mentioned down in article number 14 to 18. Then number 2, right to freedom is there, which is mentioned down in article number 19 to 22. Okay, number 3, right against exploitation, which is mentioned down in article number 23 and 24. Okay, then number 4 we have freedom of religion, which is mentioned down from article number 25 to 28. So come this side. Okay, so you can see article fundamental right number 5, cultural and educational rights, which is mentioned down in article number 29 and 30. Okay, then number 6 we have right to constitutional remedies, so article number 32. Okay, then one is missing over here, 29 to 30, then 31, that I'll explain you while I explain from the top. The last one we have right to education, which is mentioned down in article number 21A, which was recently added in the fundamental right by deleting it from the directive principles of state policy. Now we'll discuss all those articles from 14 to 32. From article number 14 to 32, okay, we'll discuss all these articles one by one. Okay, so please stay with me till the end. Okay, it is for your betterment and for your understanding also. Okay, now you can see, let's start with article number 14. So right to equality. So right to equality is mentioned down in article number 14 to 18. So how many articles are there? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Article number 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, so all these articles are within right to equality. So this right to equality is one of the most important right, my dear, which gives us the status of equality within the country and through the constitution for the citizen of the country. So the first one you can see here, that equality before law. Each and every individuals living in the country, the citizens of the country will be treated equally in front of the eyes of law. In the eyes of law, everyone is equal. Okay, suppose for example if a king kills a beggar or a beggar kills a king, the same punishment. Okay, so law is equal for everyone and those law will be provided to everyone. The justice will be given to each and every citizen of the country, though it will be delayed, but justice will be delivered at the end of the day. Okay, then next one we have is number 15, equality of opportunity regarding employment. So any sort of employment whichever will be provided in our country, my dear, equal opportunities will be given to each and every people of our country. Whenever there will be a vacancy, okay, government vacancy or any sort of jobs vacancies, my dear, each and every people will get an opportunity to avail that job opportunities, though that will be decided on the basis of merit. That is something different. So there won't be any discrimination. There won't be any discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion or a place of birth.
ओके, नो भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, उनके मेल फीमेल को लेकर के, या जगह जहां पर वो जन्मे हैं वो सबको लेकर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ओके, नाउ आर्टिकल नंबर 16 डिस्कस प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. So no discrimination. There should not be any discrimination in any way. There should not be discrimination in any way. So no discrimination on the basis of, once again, like religion, race, caste, sex, place of birth, residence, in matters relating to any sort of related things. No discrimination will be made. So all these things, my dear, article number 14 to 18 deals with all these things. Now article number 17, you can see over here, all these are simple. Equality before law. In the eyes of law, all are equal. Opportunities will be given to every people in regarding employment facilities. Prohibition of discrimination, किसी भी तरह का discrimination, भेदभाव नहीं किया जाएगा. And the 17th article talks about abolition of untouchability. ठीक है, छुआछूत की जो पहले जो हमारे देश में चलती थी, इसका छुआ पानी मैं नहीं पीऊंगा, ये हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकता, उसको पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दिया है. दो अभी भी बहुत सारे जगहों में ये चलता है, लेकिन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो अनटचेबिलिटी की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी जब आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि हम सबको एक साथ मिलकर के लड़ना है, तो हम इन जातियों को क्यों छोड़ें. तो इसीलिए गांधी जी ने उनको नाम दिया था हरिजन, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड. चलो आप भी हमारे साथ आओ और हमारे साथ आगे बढ़ो देश की आजादी के लिए. सो दिस अनटचेबिलिटी इज कंप्लीटली रिमूव्ड. अगर कोई ऑफेंस है, देखो ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि लिख दिया बस हो गया. अगर किसी तरह का रिफ्यूजल, अगर कुछ लोग करते से रिफ्यूजिंग एडमिशन टू एनी पर्सन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कोई जाने से रोक देता है, या फिर प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम वर्शिपिंग इन प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, अगर वहां किसी मंदिर या किसी जगह में घुसने से रोकता है, वो एक ऑफेंस है. तीसरा है इंसल्टिंग द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके, ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी ऑफेंस है. ठीक है, आपको सजा मिलेगी, क्योंकि इफ यू गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट. ओके, एंड देन प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. प्रीचिंग भी मना है, इनको प्रीच करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कन्वर्ट करते हैं ना मिशनरीज वगैरह या कोई भी धर्म के लोग जो इन जातियों का धर्म परिवर्तन करते हैं, ये भी मना किया गया है. इनको गरीब जान करके, पिछड़ा जाति जान करके इनको कन्वर्ट नहीं करना है, किसी भी तरह का नहीं करना है. ठीक है, सो एबोलिशन टाइटल अनटचेबिलिटी इज कंप्लीटली एबोलिश. हमारे देश में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है. आप किसी के साथ भी बैठ करके खा सकते हो, कोई भी कहीं से भी पानी ले सकता है, पी सकता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल नंबर 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. पहले ब्रिटिश के जमाने में क्या था कि टाइटल्स वगैरह देते थे, राय बहादुर हो गया, राय साहब. ओके, ये ब्रिटिश के जमाने में ये सब टाइटल्स चलते थे, खान बहादुर, ये सब टाइटल. सो इनको भी पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया. दिस टाइटल्स आर ऑल्सो एबोलिश, क्योंकि अगर टाइटल के साथ लोग पहचाना जाएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंसेस, तो हम इक्वल नहीं मानेंगे उनको, इसीलिए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. ओके, लेकिन फिर भी जैसे मिलिट्री में जैसे बहुत सारे ऐसे टाइटल्स है, जैसे परमवीर चक्र है, भारत रत्न है, या पद्म विभूषण है ना, पद्मश्री है, परमवीर चक्र है, वीर चक्र है. ठीक है, सो ऑल दिस टाइटल्स आर परमिटेड फॉर द मेरिटोरियस जॉब फॉर द इंडियन सर्विसेज. ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द मेरिटोरियस services rendered to the individuals, citizens to the country or mankind. ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बाकी किसी तरह का टाइटल्स जो था उसको पूरी तरह से खत्म किया गया है. अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे. सो आई होप ये आर्टिकल जैसे है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, सो अब हम बात करेंगे, विल नाउ डिस्कस अबाउट राइट टू फ्रीडम. जो हम फ्रीडम की बातें हम आजाद देश में करते हैं, जो कौन सा फ्रीडम हमें मिला गया है वो बात करेंगे. ओके, सो आर्टिकल नंबर 19 में क्या है. ठीक है, सो यू माइट हैव सीन, ऊपर में हमने बात की राइट टू फ्रीडम इज मेंशन डाउन आर्टिकल नंबर 19 to 22, 19, 20, 21, 22. ठीक है, ये 4 आर्टिकल्स जो है राइट टू फ्रीडम में आते हैं. और सिर्फ राइट टू फ्रीडम में जो आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है. ओके, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस. सो सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
आर्टिकल नंबर 19 में लिखा गया वी हैव द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी भी तरह की बातें हम कर सकते हैं, ठीक है, विच इज गुड फॉर द नेशन, ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन एक्सप्रेस our opinions for the betterment of the country, okay, so freedom of speech and expressions are not absolute, ये भी एक sentence है, because during the time of emergency all these freedoms will be curtailed, ठीक है, emergency situation में क्या होता है, कुछ freedom जो है आर्टिकल नंबर 19 में जो freedom है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, फिर उसको बहाल कर दिया जाएगा, ठीक है, सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ये जरूरी नहीं कि योर फ्रीडम, वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, योर फ्रीडम शुड नॉट इन्फ्रिंज माय फ्रीडम, आपकी आजादी मेरे आजादी को बर्बाद नहीं कर सकती या टक्कर नहीं दे सकती, वी ऑल आर गिवन फ्रीडम, सो एक दूसरे की आजादी पर किसी तरह का टकरार नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो एक चीज ध्यान दें, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, वी कैन स्पीक, वी कैन एक्सप्रेस, किसी भी तरह का आपके अंदर जो ओपिनियंस है आप रख सकते हैं, किसी से सवाल पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार से, है ना, ये सब आपको परमिशन है, ठीक है, विद इन सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। अब देखो, आप देखते ही होंगे कि हमारे देश में इतनी आजादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कि आप हम अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते हैं, इतने जोक्स, इतने चुटकुले बनाते हैं, कितनी बातें करते हैं, ये परमिशन और देश में नहीं है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम माय डियर, कंपेयर आवर कंट्री विथ नॉर्थ कोरिया और चाइना से आप कंपेयर कर लो, तब समझ में आएगा कि वहां के लोग रोते हैं इस फ्रीडम के लिए, और हमें हद से ज्यादा आजादी दे रखी है, उस आजादी को आपको सही तरीका से इस्तेमाल करना होगा कंस्ट्रक्टिव वे में। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज मैं इस चैप्टर को हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हर कोई इसे समझे और उनके इसको सही तरीका से इसको समझने की प्रयास करे। ये आपकी बातें हैं, हमारी बातें, हम सबसे जुड़ी हुई बातें। अब नंबर 2 में विद इन आर्टिकल नंबर 19 में एक और है आपका, टू असेंबल एंड फॉर्म यूनियन। आप किसी भी जगह में असेंबल हो सकते हैं, 10-15 आदमी को लेकर के मीटिंग कर सकते हैं, है ना। असेंबल मतलब एक जगह एकत्रित होना, उसके बाद आप मीटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, दैट ऑल्सो विदाउट एनी आर्म्स। सही मकसद से आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गलत मकसद से कर रहे हैं तो उस पर प्रॉब्लम है, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन फिर भी किसी तरह का असेंबली करने से पहले आप अपने पुलिस स्टेशन से परमिशन ले ले तो कोई रुकावट नहीं है, परमिशन लेना जरूरी है, ओके, रोकेगा कोई नहीं। उसके बाद ये है फॉर्म यूनियन। तो किसी भी तरह का यूनियन, जैसे जैसे ट्रेड यूनियन होता है, आपने देखा वो ऑटो रिक्शा यूनियन है, बस ड्राइवर एसोसिएशन है, उसके बाद ठेला यूनियन है, सबका यूनियन होता है। ये यूनियन जो बनता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। अगर आप सब सड़क पे चल रहे हैं, आप कभी देखे होंगे किसी ऑटो वाला को गरीब जान के किसी आदमी ने मार दिया तो आप जरूर फंसेंगे, क्योंकि सारे ऑटो वाले हो सकता है कल के दिन स्ट्राइक कर दे, हो सकता है आपको पब्लिकली माफी भी मांगना पड़े। ये सब उनके अधिकार के लिए, उनके सोशल एंड इकोनॉमिक राइट को सेफगार्ड करने के लिए यूनियन बनाया जाता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी यूनियन होता है ना, ट्रेड यूनियन। तो ये बनाने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है ये, इसको ध्यान दे, ये जो है मैं बता रहा हूं, ये आपका राइट टू फ्रीडम में ये आ रहा है सारा कुछ, इसको जान के रखे आप। उसके बाद देखिए, टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के भूभाग में किसी भी जगह में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपसे ना कोई पासपोर्ट मांगेगा, आपसे ना कोई आधार कार्ड मांगे, कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, बिकॉज यू आर मूविंग विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ योर कंट्री। सो दैट फ्रीडम वी हैव, वी कैन मूव एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। आज मैं वेस्ट बंगाल हूं, मैं कल महाराष्ट्र जा सकता हूं, ट्रेन में डायरेक्ट टिकट ले लूंगा, फ्लाइट में ले लूंगा, जाल चला तो कोई मुझे नहीं पूछेगा कि पेपर दिखाओ या आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। आई हैव दैट फ्रीडम टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। सो ये इंडियन होकर के ये डर मत रखे कि मैं इस स्टेट से हूं, मैं दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता हूं, इसका डर बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी हर किसी को थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद है ये भी देख लीजिए, टू
टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, देश के किसी भी कोने में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी टेरिटरी में कोने में आप रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, कहीं जाकर जमीन ले लिए, घर बना लिए, आप वहां रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बिहार का आदमी बिहार में रहेगा, बंगाल का आदमी बंगाल में, नहीं, आप कहीं भी जगह ले लो, कहीं पर भी प्रॉपर्टी आप खड़ा कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव द फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम देश के किसी भी कोने में, किसी भी जगह में जाकर के बसोबास कर सकते हैं। समझ में आए? समझ गए? ओके, सो नेक्स्ट वन यू कैन सी हियर, ये लास्ट वाला है, 19 में ही आता है, टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, है ना, आप जो काम करना चाहते हैं, कोई भी जो ऑक्यूपेशन आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, नहीं, आपका पसंद है, आपको टीचर बनना है टीचर बन जाइए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाइए, है ना, कोई भी काम आप चूज करके कर सकते हैं, ये फ्रीडम है आपका, ठीक है। माँ बाप का दबाव तो हमेशा रहता ही है बच्चों के ऊपर कि आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, लेकिन आपको जिस चीज में खुशी मिलती है, आप जिस चीज में अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप जरूर जुड़े, ठीक है। सो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को आप चूज कर सकते हैं और जिंदगी को आराम से गुजार सकते हैं। सो फंडामेंटल राइट किसी के ऊपर बोझ नहीं है, ये हमारे अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल नंबर 19 तो हो गया, अब आर्टिकल नंबर 20 देखते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20। सो आर्टिकल नंबर 20 में, यहां जगह की कमी की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं, इसमें लिखा गया है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी तरह का ऑफेंस हो गया आपसे, है ना, तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको सहूलियत दी जाएगी, आपके लिए भी वकील का इंतजाम कराया जाएगा, आप भी अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। दैट मीन्स किसी भी तरह से, ये जरूरी नहीं है कि आप खूनी साबित हो गए तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, नहीं, आप भी अपने आप को दोषी बाइज्जत बरी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने लिए वकील लड़ना है, वकील करना है। अगर वकील नहीं हो पा रहा आपसे तो सरकार आपको जरूर वकील देगी, ठीक है। तो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 20 में, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर एन ऑफेंस, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एश्योर्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड एक्सेस पनिशमेंट टू एनी पर्सन हु इज एलिक्ट टू हैव कमिटेड ऑफेंस। जो ऑफेंस आपने किया है उसी की सजा मिलेगी, उससे बढ़कर सजा आपको नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। आपने मर्डर किया तो मर्डर का ही सजा मिलेगा, इससे नहीं कि आपको 2 बार फांसी तो नहीं चढ़ा जाएगा, है ना। उसके बाद लिखा गया, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ व्हिच इज इन फोर्स व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। आपको उसी चीज की सजा मिलेगी जिसको आपने कमिट किया है, आप जिस क्राइम को अंजाम दिए हैं उसी की सजा आपको मिलेगी, ठीक है। और दूसरा बात है, एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप एक्यूज्ड हो, आप ही का गवाही नहीं लिया। जब मैंने किसी का खून किया तो मैं बोलूंगा जज साहब मैंने खून किया, तो वो नहीं माना जाएगा, किसी तीसरे पर्सन की गवाही से ही ये प्रूव होगा कि मैंने खून किया है। यू कैनॉट बी फोर्स्ड, आई कैनॉट बी फोर्स्ड टू बी द विटनेस ऑफ माई ओन ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही क्राइम के लिए एक से ज्यादा पनिशमेंट नहीं हो सकता है। एक पनिशमेंट, सपोज किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने किसी का किसी भी तरह का ऑफेंस उसने कमिट कर दिया, तो उसका जो सजा है एक ही बार मिलेगा। सो यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21, ध्यान दें, आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो 20 हो गया, 21 में लिखा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो योर पर्सनल लिबर्टी विल बी प्रोटेक्टेड, योर लाइफ विल बी प्रोटेक्टेड। अगर आपके जान को खतरा है तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। आपके पर्सनल लिबर्टी, आपका जो पर्सनल फ्रीडम है, उस पर कोई खतरा है तो उस पर भी आपको यू विल बी प्रोटेक्टेड। सो वी आर फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बना दिया हो गया खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, सो आवर फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जब है तो हमारा प्रोटेक्शन तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है। तो बहुत सारे ऐसे राइट्स है माय डियर, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, जानना जरूरी है, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 20 भी हो गया, आर्टिकल नंबर 21 भी हो गया, ठीक है। अब एक और आर्टिकल जो है हम बात करने जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर 21 के बाद से एक और आर्टिकल डाला गया है, वो है आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A में लिखा गया है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 21 के बाद एक और आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 21A, उसमें लिखा गया है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सो बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद से राइट टू एजुकेशन जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था वहां से हटा करके इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया है, ठीक है। सो इट हैज बीन एडेड आफ्टर आर्टिकल नंबर 21 के बाद डाला गया, तो इसको बना दिया गया आर्टिकल नंबर 21A। सो दिस राइट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस, दैट इज राइट टू एजुकेशन, ओके। इसमें लिखा गया है आर्टिकल नंबर 21A में लिखा गया है दैट कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of age of 6 to 14 in such a manner as a state may by law determine। हर एक स्टेट के गवर्नमेंट को ये देखना जरूरी है कि 6 साल से बच्चे से लेकर के 14 साल के बच्चे तक को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना ही देना है। अब फ्री और कंपल्सरी क्या है? फ्री मतलब एजुकेशन फ्री है, ठीक है, आपका एडमिशन नहीं लगेगा, आपका किसी तरह का बुक्स का पैसा नहीं लगेगा, खाने का पैसा भी दिया जाएगा, मिड डे मील भी दिया जाएगा। और कंपलसरी ये है कि हर टीचर को उन बच्चों को पढ़ाना है और हर गार्जियन को कन्विंस करना है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें ताकि उनको प्राथमिक शिक्षा मिल सके। आपको उनसे कंपलसरली स्कूल में बुलवाना है। और हर टीचर जो आलस के तरह बच्चे आए नहीं, सोए हुए, मोस्टली ये सरकारी स्कूलों में होता है, ऐसा नहीं कि सारे स्कूलों में, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स इसको तो खुलासा कर ही रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या हो गई है, ठीक है ना। सैलरी मोटी मोटी लेते हैं, काम छोटी भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी देश की भविष्य को तैयार करें, बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। सो इट इज द ड्यूटी, ये ड्यूटी किसका है? सरकार का है कि सही तरीका से ये एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। राइट टू एजुकेशन दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14, 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना ही देना है, ठीक है। ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, इसको वहां से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई सरकार करती नहीं थी कुछ भी, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया। सो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इज एडेड इन आर्टिकल नंबर 21A। सो ये फंडामेंटल राइट बन गया किसका? हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है। नहीं भी पढ़ना चाहता है तो माँ बाप का काम है कि उसको स्कूल भेजे, नजदीकी स्कूल में भेजे और उसको प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरे हिंदी से कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप नेक्स्ट वीडियो को मैं हिंदी में नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना लिया था, इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ाऊं, ताकि मकसद ये है कि आप समझ जाएं फंडामेंटल राइट है क्या, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आर्टिकल नंबर 20, 21 और 20, 21 और 21A हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 22 से हम लोग बात करेंगे। सो आर्टिकल नंबर 22, सो आपका आर्टिकल नंबर 22 राइट टू फ्रीडम में ही आता है, 22 राइट टू फ्रीडम में ही आएगा, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 22 में लिखा गया है कि किसी भी तरह का आर्बिट्री अरेस्ट, प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर किसी चीज से आपको खतरा है तो उस इंसान को आप अरेस्ट कर सकते हैं, उसको जानकारी देंगे कि आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, ऑन विच ग्राउंड द पर्सन इज अरेस्टेड, उसको जानकारी देनी जरूरी है, ठीक है। यहां लिखा गया है एज पर द प्रोविजन नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड and be detained in custody without being informed on the ground for detention। बिना जानकारी का, मेरे जानकारी के बिना मुझे किस चीज के लिए अरेस्ट किया गया, ये परमिशन मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मैं किस लिए अरेस्ट हो रहा हूं। आपको जना करके अरेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। सो और इट इज एक और है, ही सी हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर एंड डिफेंड हिमसेल्फ। वो आप कोई लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, अपने केस को डिफेंड करवा सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप पकड़े गए तो आप गए कभी बचेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। यू ऑल्सो हैव द राइट टू डिफेंड योर सेल्फ। अगर कोई भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है ना, सपोज किसी को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ने, तो 24 आवर्स के अंदर में, विद इन 24 आवर्स ही मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, जो सामने जो मैजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश करना होता है। अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया, थाने में डाल दिया, मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपने अरेस्ट किया, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, 24 घंटे के अंदर में उसको पेश करना है। ठीक है, ये एक और जानकारी रखना जरूरी है। सो दिस सेफगार्ड्स हाउएवर आर नॉट आंसरेबल टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और है प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाट इज मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन? दैट मीन्स यू आर बीन डिटेन्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। आप अगर कोई क्राइम करने जा रहे हो, क्राइम करने से पहले ही आपको पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे, दैट इज नॉन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आपको प्रिवेंट कर लिया गया क्राइम होने से। सपोज एक टेररिस्ट है, लगता है कि ये बम कहीं पर लगाने वाला है, कुछ गड़बड़ी करने वाला है, तो आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे ताकि प्रिवेंट किया जाए क्राइम को। सो दैट इज नॉन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये सारा हो गया आपका राइट टू फ्रीडम में। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक आपका हो गया राइट टू फ्रीडम। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे राइट आर्टिकल नंबर 23 और 24 की। तो अब हम इस बोर्ड में पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो 22 तक हमने कर लिया। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज मेंशन डाउन इन आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। दो ही आर्टिकल है। ठीक है, सो प्रोहिबिशन दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लॉइट एनीवन। सो एक्सप्लॉयटेशन जो था ब्रिटिश के समय में था, है ना, उस समय ब्रिटिशर्स लोग तो एक्सप्लॉइट करते ही थे। ओके, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स मनी लैंडर्स ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द पीपल, द जमींदार्स एक्सप्लॉइटेड द पीपल, पीपल वर फोर्स्ड टू डू लेबर एंड दे वर नॉट पेड देयर वेजेस एंड द सैलरी। सो इस तरह का पहले चलता था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। देयर कैन नॉट बी एनी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई एक्सप्लॉइट होता है तो आपको सजा मिलेगी। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक घर में एक सर्वेंट रखा हूं, उसको दिन भर काम करवाता हूं और अंत में मैं उसको पैसा भी नहीं देता हूं, सही तरीके से खाना भी नहीं देता हूं, ये तो आप जाति कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। तो ये सब आर्टिकल मना करता है आपको। प्रोहिबिशन ऑफ, सबसे पहले ये बात कर ले, चाइल्ड लेबर की बात हम बाद में करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक इंसान को खरीद बेच करना एकदम पनिशेबल ऑफेंस है ना। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। सो ट्रैफिकिंग एक जगह से दूसरे जगह फॉर इलिसिट पर्पस, इमोरल पर्पस से छोटे छोटे बच्चियों को अगवा कर लेते हैं और दूसरे जगह में एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनसे गलत काम करवाया जाता है। ये सब मना किया गया, लिखा गया है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। आपको जबरदस्ती कुछ करवा रहा है ना, आप नहीं चाहते हैं करना फिर भी करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स लेबर एंड दैट इज हाउ एक्सप्लॉयटेशन इज डन। ओके, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको कोई भी जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता जब तक आपका मन ना हो। ओके, तो किसी बच्चे से हो या किसी औरत से हो या किसी लड़की से हो या किसी आदमी से हो, किसी भी तरह का जबरदस्ती कोई नहीं करवा सकता है। नहीं करना चाहता है कोई काम तो उसको जबरदस्ती ना किया जाए, है ना। उसके बाद है फोर्स्ड लेबर, जानबूझ करके जबरदस्ती से काम करवाना। ठीक है, फोर्स, जबरदस्ती उसे काम करवा रहा है, वो नहीं चाह रहा है काम करना फिर भी करवाना गलत है। दैट कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, फोर्स लेबर मींस व्हेन वी वर्क, दैट इज कॉल्ड लेबर। ओके, सो ये भी नहीं करना चाहिए। किसी से जानबूझ करके भीख मंगवाना, छोटे छोटे बच्चों से हाथ काट देना, पाँव काट देना, भीख मंगवाना, ये सब एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में आता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 24 पूरी तरह से कहता है कि चिल्ड्रंस एम्प्लॉयमेंट, बच्चों का सही जगह स्कूल में, इसीलिए तो फंडामेंटल राइट में कहा गया है आर्टिकल नंबर 21A में, राइट टू एजुकेशन। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 मस्ट बी इन स्कूल। उसको पढ़ना है, फैक्ट्रियों में ऐसे जगहों में काम नहीं करना है जिससे उनके तबियत पर असर पड़े, उसके हेल्थ पर असर पड़े। ठीक है, तो लिखा गया है चिल्ड्रंस एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डरस वर्किंग कंडीशन
बड़े बड़े कोयला के खानों में, फैक्ट्रियों में, जहाँ से जहरीली गैस निकलती हो, केमिकल्स निकलता हो, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को काम करवाना गलत है। ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है, यहाँ लिखा गया। इट इज कंप्लीटली चिल्ड्रंस एम्प्लॉयमेंट इन होता है या होता था बोलकर ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लाया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ना हो बोल करके। ब्रिटिश के समय में होता था, ऐसा कंटिन्यू ना हो बोल करके ये लाया गया है आर्टिकल नंबर 24। ओके, चिल्ड्रंस एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस, ओके, हार्मफुल प्लेसेस or which will affect their internal organs must be avoided। ठीक है, सो ये हुआ आपका आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 28, ये जो आपका है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आपका सबसे बड़ा चीज। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिया इज सेकुलर कंट्री, सो विद इन दिस फ्रीडम आप क्या क्या कर सकते हो। सो नंबर 1 यहां पर लिख लीजिए 25 नंबर में, आर्टिकल नंबर 25 में, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे। सो आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है, सो फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, सो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, आपका अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को माने, विश्वास करें, पूजा करें, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। दैट मीन्स, सो बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री वी हैव द फ्रीडम टू प्रोपोगेट, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस द रिलीजन ऑफ आवर चॉइस। अपना पसंद का धर्म को हम चूज कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उनको अपना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। जबरदस्ती आपको ये नहीं बोलेगा आप ये करो वो मत करो, ऐसा नहीं है। सो दैट इज द फ्रीडम मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 26 में लिखा गया है फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आपके पास फ्रीडम है, किसी तरह का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट, मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, धार्मिक स्थल को खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो एवरी रिलीजियस सेक्ट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश, एवरी, not only one, every religious sect has the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose। ये कर सकता है। okay, so each group is also free to purchase and manage its movable and immovable property in accordance with law for the propagation of the religion। ये कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है ये आर्टिकल नंबर हो गया 27, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, किसी भी तरह का धर्म से जुड़ा हुआ रिलीजियस अफेयर्स दे कैन डू इट। ओके, सो नो पर्सन shall be compelled to pay, compelled means forced to pay any tax for the promotion or maintenance of any religion। किसी भी धार्मिक चीज को प्रमोट करने के लिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, सो आर्टिकल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू पे एनी टैक्सेस, द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर पर्टिकुलरली appropriated in payment of expenses for the spread or protection of any particular religion or religious denomination। धर्म को फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए, धर्म से जुड़ा हुआ किसी तरह का काम में अगर पैसा लग रहा है तो उस पर आपको टैक्स देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीडम फ्रॉम, ये बहुत जरूरी चीज है, ये नंबर 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। किसी भी स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हर धर्म के बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक धर्म से जुड़ा हुआ चीज को वहां पर बच्चों को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाएं, ये परमिशन नहीं है। ठीक है, इट इज लिखा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो रिलीजियस एजुकेशन, किसी भी धार्मिक एजुकेशन कैन बी imparted, no religious education can be imparted in any educational institution। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में धर्म से जुड़ा हुआ पढ़ाई नहीं बच्चों से करवा सकते हैं। ठीक है, और ये है ऐसे स्कूल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के पैसे से चलता हो, गवर्नमेंट फंड से चलता हो, वहां पर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, वहां पर बाइबल की पढ़ाई होती है तो उसमें हम नहीं रोक सकते हैं,
वहां पर प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे अपने मर्जी से जाते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप दूसरे धर्म के हैं, मैं वहां बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वहां बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तो आप मत पढ़ाइए वहां पर किसी ने बोला नहीं कि आपको मेरा ही स्कूल में आना है, पढ़ना है। सो कहने का मतलब है किसी भी स्कूल विच इज रन बाय द स्टेट फंड कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस, क्योंकि उस स्कूल में तो सभी धर्म के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए ना, उसके धर्म के साथ सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है, जबरदस्ती एक सब्जेक्ट बनाकर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको कुरान पढ़ना है, एक कुरान का क्लास हो गया, एक इसका क्लास हो गया, बाइबल का क्लास हो गया, तो आप जबरदस्ती किसी बच्चों को पढ़वा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ये लिखा गया है पूरी तरह से। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस, फ्रीडम, आप फ्री है, अटेंड ना करें, ऐसा क्लास अगर करवा रहा है तो मत करें। अटेंडेंस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज रन स्पेशली ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट फंड। ठीक है, होली मेंटेन बाय द स्टेट फंड। ओके, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। और एक चीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है। इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। किसी तरह से धर्म को लेकर के कोई झमेला झगड़ा हो जा रहा है, राइट्स हो जा रहा है, उस समय कुछ समय के लिए आपका राइट टू रिलीजन जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, 25 to 28 पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें करता है। ये हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब दो और बचा हुआ है, जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स आई ट्राई टू कंप्लीट इट। सो फिर से व्हाइट बोर्ड में अब हम बात करेंगे, नाउ विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल नंबर 29 and 30 विच टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्चर्स, कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ये सब जो चीज है ना, सो वी हैव द राइट टू प्रिजर्व आवर कल्चर। जो कल्चर हमारा है हम उसको प्रिजर्व करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। वी हैव दिस राइट दैट वी must or we have to preserve our culture. ठीक है, so our constitution provides necessary guarantees to preserve, maintain and promote our culture and language. Okay, and it also, constitution also allows minorities are those people who are less in number, like Muslims are in minority. ठीक है ना, उनके नंबर कम है, minorities Christians हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, है ना, किसी भी तरह और धर्म से जुड़े हुए लोग जो कम नंबर में है, they are known as minorities. Okay, so those minorities are allowed to establish and maintain educational institution on their own. खुद से ही education institution को establish करना चाहे तो कर सकते हैं। Okay, so it also provides that there won't be any discrimination against any educational institution while granting financial aid. कोई भी फाइनेंशियल एड जो सरकार देती है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। हम मुस्लिम माइनॉरिटीज को दे रहे हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को दे रहे हैं, इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो, ऐसा नहीं। Whenever the financial help is provided by the government, they don't do any discrimination. So there should not be any discrimination also. Discrimination करना भी नहीं चाहिए। ओके, पूरी तरह से लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हाइल ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड। एड मींस हेल्प on the grounds that it is being run by minority communities. ये सिर्फ ये minority community के द्वारा रन किया जा रहा है, इसको पैसा मत दो या कम दो, ऐसा नहीं करना है। लिखा गया, स्पष्ट रूप से लिखा गया आर्टिकल नंबर 29 में। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि दिस राइट्स एंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज विल बी गिवन असिस्टेंस। माइनॉरिटी को पूरी तरह से हेल्प दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, है ना, इन प्रिजर्विंग ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर। उनके खुद के कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए मदद दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट कल्चर। सारे कल्चर मिल करके हमारा देश खूबसूरत बनता है। We have a variety of culture in our country, so that is the beauty of our country. ठीक है, सो हमने पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 29 and 30 भी पढ़ लिया। आर्टिकल नंबर 31 यहां से गायब है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31 दैट इज अ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं बता रहा हूं, राइट टू प्रॉपर्टी।
ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में था, उसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, दिखाने के लिए नहीं है, उसको यहां से शिफ्ट करके कर दिया है, ठीक है ना। 300 इसको 31 से डिलीट कर करके कहां रख दिया गया है, आर्टिकल नंबर 31A में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 31A में उसको रख दिया गया। इट डजंट मीन दैट वी डोंट हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा अधिकार है, वी कैन फॉर्म प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक ना। सो डोंट थिंक दैट इट इज नॉट, ये अब डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसके बदले में जो राइट टू प्रॉपर्टी है यहां चला गया 300A। उसके बाद अब हमने 31 भी कर लिया, अब लास्ट में है आपका 32, एक ही बचा हुआ, ये देखिए, ये है लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन, और फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो व्हेनेवर आवर फंडामेंटल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, माय डियर, Supreme Court or the High Court issues number of writs in order to protect our fundamental rights. ठीक है, so this is a legal remedy. It is mentioned down part 3 of our constitution that legal remedy will be provided for the protection of the rights which are violated by the state government or any institutions or any individual. ठीक है, या स्टेट आपका फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, कोई इंडिविजुअल करता है, तो इससे प्रोटेक्शन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। जैसे नंबर 1 है हेवियस कॉर्प्स, ठीक ना, नंबर 1 में है हेवियस कॉर्प्स, चलो ये टाइम वेस्ट ना करते हैं, नंबर 1 में है हेवियस कॉर्प्स, नंबर 2 में है मैंडेमस, नंबर 3 में है प्रोहिबिशन, को वारंटो, क्रिटोरी, ठीक है। व्हाट आर रिट्स, इसको हम रिट्स बोलते हैं। व्हाट आर रिट्स? रिट्स आर सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑर्डर्स इश्यूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स टू रिमाइंड देम ऑफ देयर ड्यूटीज। आपको काम का ध्यान दिला रहा, आप ये करो, आपका अधिकार ये है, आप काम नहीं कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट। सो एक मैं बता रहा हूं, हेवियस कॉर्प्स, इफ अ बॉडी, हेवियस मींस कॉर्प्स मींस बॉडी, इफ अ बॉडी इज इलीगली हेल्ड, कोई जानबूझ करके आपको अगवा करके रखा है, पुलिस ने पकड़ लिया, आप बता नहीं रहा है कि ऑन व्हाट ग्राउंड द पर्सन इज अरेस्टेड, सो इट विल, when this will come in front of the court will order them to present the body person in front of the court and explain on what ground the person was arrested, किस बिना पे आपने उसको अरेस्ट करके रखा है, आप एक्सप्लेन करो। अगर गलत किया है तो सही प्रूफ बताइए कि हाँ ये गलत है, बिना बताए आप किसी को होल्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंडेमस है, इट इज ऑल्सो अ कमांड, है ना, और ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऊंचे कोर्ट से छोटे कोर्ट को ये ऑर्डर दिया जाता है टू रिमाइंड देम ऑफ देयर ड्यूटीज, आप अपना ड्यूटी सही तरीका से करो, टू रिमाइंड देम ऑफ देयर ड्यूटीज, दिस ऑर्डर्स आर इश्यूड, दैट इज नॉन एज मैंडेमस। उसका प्रोहिबिशन है, इट इज अ ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू फॉरबिड अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को मना करना, ठीक है ना, आप अपने प्रोसीडिंग्स बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन ना करें, आपका जो अधिकार क्षेत्र है उतना में ही रहे, अब उससे बाहर जाकर के कोई ज्यूरिडिक्शन क्रॉस ना करे, दैट इज प्रोहिबिशन। उसके बाद चौथा है को वारंटो, दिस रिट इज इश्यूड टू रेस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस टू विच ही और सी इज नॉट एंटाइटल्ड, आप ऐसे पब्लिक ऑफिस में कर रहे हो जो आपका है नहीं, दूसरे का काम कर रहे हो, ये परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है क्रिटोरी, दैट मीन्स टर्म क्रिटोरी का मतलब है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, इन्फॉर्म करना क्या चल रहा है, ठीक है। इट इज एन ऑर्डर टू द लोअर कोर्ट, उचला कोर्ट से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आप जो कर रहे हो, है ना, कोई भी चीज वहां पर चल रहा है, ट्रांसफर ऑफ केस चल रहा है, किस स्थिति में केस है, पोजीशन क्या है, कितने नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग, ये सब की जानकारी लेना, डिसाइड करवाना, ये सारा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर होता है। सो द ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, ओके। सो व्हाट इज रिट? रिट इज अ ऑर्डर, certificate order issued from the high court to the lower court. So that is all constitutional remedies. Constitution आपको रास्ता बताता है किस तरह से आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो हर चीज का सुविधा आजादी दिया गया है। So all these rights, my dear, are very very important for our development. So what is fundamental right? The rights which are very very essential for the fullest development of a human personality. हम खुशी से जिए, खुशी से रहे, खाए पिए, हर चीज की सुविधा हमें मिले, उसकी आजादी हो, बोलने की आजादी हो, that is known as a fundamental right. So fundamental right is enshrined in part 3 of our constitution. कौन से पार्ट में है मैंने शुरू में बताया था, फिर एक बार लिख देता हूं, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स,
तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, डोंट टेक इट इजी, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू गो थ्रू व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू यू. It is not only for the syllabus point of view I taught it, it is for your understanding that you being the citizen of this country, you must know about your rights. You must know about your rights. So I hope you all have understood today's class. आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट आप लोग इसको देख करके पूरा जरूर करेंगे. So we have come to the end of this class. So we'll meet again with a new topic in the next class. Till then, take care, stay safe. Bye bye.